जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं हर्षराज सिंह चौहान आपके सामने मेनली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे आज। कोई जीवित जीव है, निर्जीव वस्तु और जीवित जीव में क्या अंतर होता है? लिविंग बीइंग की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अ लिविंग बीइंग है प्रॉपर्टीज मेनली they show growth, they show movement, they have the ability to respond to stimuli. After eating food, they have to excrete the waste from their body after absorbing the essential nutrients. Reproduction means to continue for the continuation of species, they have to reproduce because every living being or living organism has a fixed lifespan. After that it will die. So to continue its life, it has to reproduce its offspring to continuation of its species in this world. Adaptability means animal have adaptability to its environment. For example, the animals which lives in the cold environment, for example in Siberian countries or in Antarctic, for example the polar bear, the yak, they have a thick fur on their body which protects them from the cold outside. For example, we take another example of adaptability. The animals which live in regions there where are a lot of heat, throughout the year they get a lot of heat. For example, in deserts, for example camel has adapted itself in the nature, in the environment which the camel live. For example, the camel have a thick foot and upon it there are thin legs on the camel foot. Its foot is adapted in order to walk on the desert. At one time it can drink a lot of water which stays in its body for a longer period of time. And the last one is the evolution. What is the evolution? Evolution means that every animal have to evolve. For example, we can take in real life that each time our mobile takes coins us after message, please update your mobile. Update, for example, each and every time we have to update our mobile in order to get the new features, new systems. For example, your WhatsApp, your Instagram, your any applications required the update. Update means up to date. Up to date means that new features, new technology or any new software or technology which is added in that application is installed in your mobile. Like that, every animal have to adapt according to its environment. For example, we humans have to adapt the evolutionary history of humans. We can say that firstly we are what, a monkey. After that a long journey of evolution which changes into Homo sapien. In from a monkey to Homo sapien we have traveled a large journey in which many types of humans we can see, and we have studied about the Neanderthal, the Cro-Magnon, and etc. So the cumulative changes means that changes which are essential for an animal to survive in the environment, and that changes are helpful for that animal to survive in the environment which
that animal is living. For example, example for camel is living in desert where there is no water. There is where there is wind is flowing with very hard speed, and these winds are full of sand, which if the camel will inhale the psilocybe, for example, a disease which caused by the dust and soil which is traveling in the air, and we inhale it will does silicosis disease to us. जैसे कि अब मैंने आपको समझाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वह क्या करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसको आप लोकोमोशन कहते हो। लोकोमोशन का मतलब जैसे मैं हूँ यहाँ खड़ा था तो चल के आपके यहाँ पर चला गया। उसी प्रकार हर जीव में क्या मिलता है, लोकोमोशन मिलता है। लेकिन आप कहोगे कि सर पेड़ भी तो जीवित है, उसमें तो कोई पेड़ वृद्धि नहीं करता है। मोशन होता है पेड़ में। पेड़ बरगद का बीज जितना छोटा सा होता है, और जब 10-15 साल बाद वो एक विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने दिखता है। तो उसी प्रकार रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, देखो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है कि स्टिमुलस का मतलब बाहरी वातावरण में आने वाले परिवर्तन। जैसे कि आपको ठंड लग रही है, आपको बाहरी वातावरण से गर्मी लग रही है, तो आपको गर्मी लगी तो उसके रेस्पॉन्स में आपके शरीर ने क्या रेस्पॉन्स दिया, तो बाहरी वातावरण में आने वाले बदलाव जैसे कि गर्मी, सर्दी, बाहर आपको चोट लगी, तो बाहरी वातावरण का अपने शरीर, मतलब जैसे कि बाहर कुछ भी, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, उसके बाहरी वातावरण में गर्मी बढ़ी, सर्दी बढ़ी, उसके रेस्पॉन्स में क्या करेगा इंसान, या तो गर्म कपड़े पहन लेगा। ये तो चलो ह्यूमंस की बात हुई। जैसे कि कुत्ता है, तो आप सबसे छोटा एग्जाम्पल लो कि आप सड़क पे चल रहे हो तो आपने कुत्ते को पत्थर मारा, तो बाहरी उस डॉग की बॉडी के बाहरी वातावरण में क्या बदलाव आया, अ स्टोन फ्रॉम अ पर्सन थ्रोज एट द डॉग एंड हिट्स इट, वो उसको टकरा गया। तो वो क्या करेगा, या तो आपकी तरफ हमला करके दौड़ेगा या फिर भाग जाएगा। तो बाहरी वातावरण में आने वाले बदलाव के रेस्पॉन्स में उसने क्या जवाब दिया। जैसे कि आप टच मी नॉट प्लांट, चुईमी का पौधा है, जैसे आप उसको टच करते हो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। मतलब बाहरी वातावरण में आने वाले चेंजेस के रेस्पॉन्स में उसने क्या रेस्पॉन्स दिया। रिप्रोडक्शन का मतलब कि कोई भी जीव है वह सदाबहार नहीं है, एक समय के बाद उस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस की एवरेज लाइफ स्पैन होता है 100 साल। एक तोता होता है नियरली 30-40 साल जीता है। एक टोर्टोइज होता है कछुआ, वो आपके 200-300 साल जीता है। एक व्हेल मछली होती है, उसका शायद 200 साल उसकी लाइफ स्पैन है। बरगद का पेड़ जैसे 1000 साल। देखो जैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, तो 1000 साल वो जी रहा है, लेकिन 1000 साल बाद में तो वो मरेगा। तो उसका, जैसे कि बरगद का पेड़ है, तो बरगद भी दुनिया में रहे उसके लिए वो क्या करेगा, बीजों का निर्माण करेगा। इंसान भी दुनिया में रहे, हम दो हमारे दो, तो उसके लिए क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देगा। उसी प्रकार एक तोता है, वो अपने जैसे जीवों को जन्म देगा। तो ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। एडेप्टिबिलिटी का मतलब अपने बाहरी वातावरण के साथ में अपने आप को एडेप्ट करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि सर्द इलाकों के अंदर आपके याक होते हैं, पोलर बियर होते हैं, तो ये जीव क्या होते हैं, इनके शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो अपन जैसे जर्मन शेफर्ड कुत्ता, आपके जो विदेशी कुत्ते अपने यहाँ पर नस्ल लाते हैं, गर्मी में इनको बहुत तकलीफ होती है। देखो इसका कारण क्या है कि ये जीव क्या ठंडे इलाकों के जीव हैं, तो इनका जो शरीर है, इनके जो बहुत बड़े बड़े बाल उगे हुए इनके, वो क्यों उगे हुए, वो एक एडेप्टिबिलिटी, उनके शरीर ने एडेप्ट किया है ठंडे वातावरण में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। अब आप उसको गर्म इलाके में रख दोगे तो गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फर उसको क्या है, गर्मी दे रहे हैं। क्या एक एग्जाम्पल दो, अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है। सीधा क्यों होता है, क्योंकि यह ठंडे इलाकों का, बर्फबारी वाले इलाकों का पेड़ है। उसकी पत्तियां के नीचे की ओर झुकी होती हैं। जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर में वहाँ पर जो पेड़ होते हैं बिल्कुल कॉर्न शेप के होते हैं, क्योंकि उस पेड़ ने इवोल्यूशन के चलते अपने आप को, मतलब क्रमिक विकास के चलते अपने आप को क्या किया, इवोल्व किया। जैसे ही बर्फ उसके ऊपर गिरती है, उस पर ठहरती नहीं है, लुढ़क के नीचे गिर जाती है। ये हो गया इवोल्यूशन। अब आपको हम जैसे कि आपको बता ही दिया था हमने कि और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी जीवित जीव की, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब
भाई व्यवस्थित उसका सर होगा, उसके हाथ होंगे, पैर होंगे, ऑर्गेनाइज्ड शरीर होगा। ऐसा नहीं है कि सर ऊपर है पैर नीचे है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा टाइप का नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। जैसे हम रेस्पिरेशन का शब्द समझते हैं कि भाई हमने श्वास ले ली बाहर छोड़ दी। साइंस में रेस्पिरेशन का रियल मतलब ये नहीं होता है। साइंस में रेस्पिरेशन का मतलब होता है आपने सांस ली, वी इनहेल ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन गोज थ्रू अवर फेरिंग्स एंड बाय via our bronchioles, bronchi, it reaches to the alveoli. Alveoli have a fine network of capillaries. These capillaries uh, have blood rich blood which contains RBCs. As we know that RBCs have hemoglobin. Hemoglobin, one RBC catches 4 oxygen atoms. This oxygen through via our heart pumps it to all body, and this oxygen through all body reaches to our cells, and our cells in exchange produce energy in the form of ATP by the breakdown of glucose. This process gives a waste product called CO2. This CO2 is released in further our veins. Via veins this reaches our heart, and after our heart pumps it to through pulmonary vein to our lungs, and our lungs again we reach to alveoli. This CO2 was again released, CO2 was released into the alveoli and we inhale. कहने का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमने श्वास ली, हमने हमारी श्वास हमारे कंठ से पहुंची हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई करके एक सबसे छोटी इकाई होती है, लाखों करोड़ एल्वियोलाइज होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। तो उस एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज का वास्ट नेटवर्क होता है, और वहीं पर क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। जो O2 होती है वो गुज जाती है कहाँ पर, आपके ब्लड में। O2 4 O2 के एटम किसके ऊपर सवार हो जाते हैं, आपके आरबीसी पे। आरबीसी पर सवार होकर आपका ब्लड आपके लंग्स से कहाँ पहुँचता है, हार्ट के पास में। हार्ट उसको पंप करता है आपकी कोशिकाओं के पास में। कोशिकाओं के पास में भोजन के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने पर हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको अपन CO2 कहते हैं। वो CO2 वापस ब्लड में मिलकर वापस हार्ट के पास आती है, और हार्ट उसको पंप करके वापस, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस हार्ट वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में समझाया था, आप उसको बेहतर ढंग से उसमें समझ पाएंगे। तो वापस आपके हार्ट ने किसको पंप किया, लंग्स को। अब लंग्स के पास में वापस वह ब्लड कैपिलरीज आएंगी, खून की रक्त नलियाँ, उनके पास में जो CO2 है। आप पूछोगे सर कि CO2 इज soluble in water and our blood has nearly a high percentage of water in itself. अब आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। पोषण में क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। व्हाट इज इंजेशन? The food may be in liquid form and may be solid form. It was taken by our mouth is called the process of ingestion. Ingestion, after this our food via our esophagus reaches our stomach, where the process of digestion starts. What is digestion? Digestion is the process in which the complex food particles, complex food is changes into what? Simpler substance. For example, our proteins changes into amino acid, fat changes into fatty acid, and our carbohydrate, cellulose changes into simple glucose form. After that, our absorption. What is absorption? After reaching that food in our small intestine. Small intestine have finger-like substances, finger-like structures which absorbs the food which is essential for our body. For example, fatty acid, proteins, vitamins and minerals, and these are absorbed by our villi. And what is assimilation? After absorbing these all types of nutritions, our blood reaches this nutrition to each and every cell of body is called assimilation. To further use, what is the use of this
इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल क्या होगा? इस्तेमाल क्या होगा? प्रोटीन से हमारा शरीर बनेगा, फैट से आपका मोटापा बढ़ेगा, ग्लूकोज से आपका शरीर को ऊर्जा मिलेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और लास्ट में होता है इजेशन। इजेशन मीन्स ऑल दैट वी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ईटन अ फूड मटेरियल, तो 100% of that food material is not utilized by our body. Minimum 5% or even 1-2% is essential for our body, and nearly 98 to 97% is a waste product which are ejected by our body. And last point, the main thing which which makes a living organism a living, that is birth, maturity, growth, old and death. एक जीवित इंसान को, जीवित जीव को जीव बनाने वाली कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं, वो जन्म लेगा, वो वयस्क बनेगा, वृद्धि करेगा, बुढ़ा होगा और मृत्यु पाएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा पहले मोटिवेशन देता हूँ। अब आज का लेक्चर समाप्त हुआ, तो आज का मोटिवेशन ये है, गलती वही करता है जो कुछ नया सीखना चाहता है। अ पर्सन हु हैड नेवर मेड मिस्टेक हैड नथिंग ट्राइड न्यू। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, उसने कभी कोई सीखने का प्रयास नहीं किया। और आपको मोटिवेशन लाइन सुनाए तो, हर बार गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।